So hi everyone, a very good evening to all of you and welcome back once again to the channel. First of all, I wish you all a very happy new year. I wish कि आपका ये साल बहुत अच्छा निकले. I wish कि जो भी एग्जाम के लिए आप तैयारी कर रहे हैं इस साल आपका वो एग्जाम निकले. Right? My blessings are with you, my wishes are with you. So on this occasion of New Year, I am here with a comprehensive 6 months timetable for the upcoming RBI Grade B examination for the year 2025. A lot of people say this, that I am unable, that we are unable to make the timetable, we are unable to make the comprehensive timetable. Actually timetable तो हर कोई बना लेता है, but comprehensive timetable बनाना topic wise, subject wise, it is a quite difficult task. So that task I have done for you right now. All you have to do is to follow this comprehensive timetable. Now this timetable covers all the static subjects. This timetable covers the current affairs. This timetable covers the annual surveys, and this timetable covers the government schemes, right? And here the static subjects means quant, reasoning, finance, management and ESI. English मैंने नहीं लिया है because I believe English आप में से बहुत सारे लोगों का ठीक होगा, जिनका ठीक नहीं होगा those guys can put some extra efforts for the subject English. ठीक है? Now I am here to explain you. Now you must be wondering then that I can also give you this timetable through my Telegram channel or maybe some other channel. So why I am here? I am here to explain the timetable, right? This timetable is quite difficult to understand कि कैसे क्या चीजें follow करनी है. So I am here to explain you this timetable. So I will take your 10 to 12 minutes and then आप अपने घर और मैं अपने घर. And I believe this is a gift from my side to you on this occasion of New Year, and I hope you guys will you guys will make the best use of it. Okay, चलिए start करते हैं. So now first of all let me tell you the timetable is divided into the morning slots and the evening slots, and I am assuming that you are going to study for at least 2 hours in the morning and 2-3 hours in the evening, right? जो वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं वो मॉर्निंग में 2 ही घंटे पढ़ सकते हैं, आई अंडरस्टैंड, एंड शाम को 3 घंटे पढ़ा जा सकता है. सो the timetable is divided into 2 parts, morning slots and evening slots, right? and morning slots में भी मैंने subject wise and topic wise division कर दिया है. ठीक है? so ओवरऑल व्यू अगर मैं दिखाऊं तो यहाँ पे मंथ 1, मंथ 2, मंथ 3, मंथ 4, मंथ 5 एंड मंथ 6 6 डिफरेंट शीट्स यहाँ पे बनी हुई है. आप जैसे क्लिक करेंगे आपको ये दूसरी शीट मिलती है, मंथ 3 पे तीसरी, मंथ 4, मंथ 5, मंथ 6. इस तरीके से पूरा का पूरा टाइम टेबल डिवाइडेड है 6 महीनों में. तो सबसे पहले मंथ 1 पे आते हैं हम. ठीक है, डे 1 से लेके डे 180 तक ये टाइम टेबल पूरा डिवाइड हो रखा है प्रॉपरली. सबसे पहले मंथ 1 पे आते हैं. सो यू विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम फाइनेंस एंड मैनेजमेंट टुगेदर, राइट? फाइनेंस और मैनेजमेंट एक साथ हम लोग शुरू करेंगे. ओके, एंड ऑल्टरनेट डेज पे पढ़ेंगे. एक दिन फाइनेंस पढ़ेंगे, एक दिन मैनेजमेंट पढ़ेंगे इन द मॉर्निंग स्लॉट. आई एम राइट नाउ टॉकिंग अबाउट द मॉर्निंग स्लॉट. One day finance, another day management. Or what also you can do is you can cover finance in one go and then management, and then pick up management after finance. ठीक है, that is up to you. Obviously this timetable can be made flexible. आप अपने अवेलेबिलिटी और अपने अकॉर्डिंग इसको चेंज कर सकते हैं, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कर सकते हैं. ठीक है, तो अभी मैंने ऐसा रखा है कि ऑल्टरनेट डेज पे आपको फाइनेंस और मैनेजमेंट पढ़ना है. सो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे मेंशन्ड है इस कॉलम में, इस वाले कॉलम में यू कैन सी आरबीआई सिलेबस. तो ये पूरा आरबीआई का सिलेबस यहाँ पे मेंशन्ड है, और ये चैप्टर्स इन द कोर्स का मतलब है दैट दिस पर्टिकुलर टॉपिक इज कवर्ड इन विच पार्ट ऑफ द चैप्टर इन द कोर्स. जो कोर्स हमारा है टेक्स्ट बुक रेगुलेटरी बॉडी का, उस वो वाला ये वाला टॉपिक कौन से चैप्टर में कवर्ड है. ठीक है, नाउ इफ यू आर प्रिपेयरिंग योरसेल्फ, अगर आप खुद से प्रिपेयर कर रहे हैं, then also you can ignore this column. What you can do, you can follow this RBI syllabus. जिस भी टॉपिक से, बुक से, कोर्स से आप पढ़ रहे हैं, तो आपको ये वाले टॉपिक्स इतने इतने दिन में कवर करने हैं, राइट? नाउ यू कैन सी आई हैव गिवन 1 2 3 4 5 6 7 days I have given to this topic, functions of RBI and banking system in India, because it is a quite heavy topic, right? It is a quite lengthy topic, so I have given 7 days to it. So based on the difficulty level, based on the length of any particular topic, I have assigned the days to these particular topics. ठीक है, तो इस तरीके से आपको सबसे पहले functions of RBI banking system in India पढ़ना है. देन उसके बाद फाइनेंशियल मार्केट, जो कि हमारे कोर्स में आपको फाइनेंशियल मार्केट में मिल जाएगा.
उसके बाद आपको अप्रोप्रिएट ब्रेक्स भी दिए गए हैं, जैसे डे 20 पे आपको एक ब्रेक मिल जाता है जहां पे आपको एक प्रैक्टिस टेस्ट लगाना है मॉर्निंग में और पूरा दिन चिल करना है, ठीक है। तो इन पे भी मैं आऊंगा। फिर फाइनेंशियल मार्केट कंटिन्यू रहेगा हमारा, ठीक है। और उसके बाद हम आएंगे बेसिक्स ऑफ डेरिवेटिव पे, ठीक है। बेसिक्स ऑफ डेरिवेटिव पे हमारा ये महीना फाइनेंस के लिए खत्म हो जाएगा। सिमिलरली जब मैं मैनेजमेंट पे आता हूं तो एक दिन हमने फाइनेंस पढ़ा, दूसरे दिन मैनेजमेंट पढ़ा, ठीक है। ये अभी हम मॉर्निंग की बात कर रहे हैं। मैनेजमेंट पढ़ा, इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट, ये आरबीआई का सिलेबस है और ये वाला चैप्टर हमारे कोर्स में है जहां पे ये वाला टॉपिक कवर है। दिस इज द चैप्टर इन आवर कोर्स वेयर दिस टॉपिक इज कवर्ड फ्रॉम द आरबीआई सिलेबस। सो इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट, इवोल्यूशन ऑफ मैनेजमेंट थॉट, मैनेजमेंट फंक्शंस एंड मैनेजरियल रोल्स, मैनेजमेंट फंक्शंस, ये सारे चैप्टर्स आपको पहले महीने में कवर करने हैं, ठीक है। उसके बाद मैं आता हूं इवनिंग स्लॉट पे। आई होप इट इज क्लियर। इवनिंग स्लॉट में आपको पढ़ना है क्वांट, पहले पढ़ना है और उसके बाद रीजनिंग, राइट। फर्स्ट वी विल कवर द क्वांट कंप्लीट क्वांट्स एंड देन वी विल गो टू द रीजनिंग, राइट। एंड आपको डेली 1 आवर देना है अपने करंट अफेयर्स को, डेली 1 आवर आपको देना है करंट अफेयर्स को। मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखा देता हूं सो दैट इट कैन बी प्रॉपर्ली विजिबल। सो क्वांट एंड रीजनिंग वी विल बी स्टार्टिंग एवरी डे फ्रॉम डे 1, ठीक है, इन द इवनिंग स्लॉट। यू कैन आइदर गिव 1 आवर और 2 आवर्स डिपेंडिंग ऑन योर एक्सपर्टीज इन क्वांट। अगर आप क्वांट में वीक हैं तो आपको 2 घंटे देने चाहिए क्वांट और रीजनिंग में, और अगर आपका ठीक ठाक है, अगर आप रिपीटर हैं, आप दोबारा से तैयारी कर रहे हैं, देन यू कैन ऑल्सो गो फॉर 1 आवर, ठीक है। सो these are the topics that you have to cover and these topics I have mentioned according to my course, right, but these are the topics from where the questions are asked, ठीक है। तो सारे टॉपिक्स हमारे कोर्स में भी कवर्ड है, सो देयर इज नो पॉइंट ऑफ वरी। स्पीड मैथ्स मतलब सबसे पहले वील अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट्स एंड कैलकुलेशन, हाउ वी कैन एनहांस द स्पीड, हाउ वी कैन एनहांस द एक्यूरेसी, द एफिशिएंसी, देन नंबर सीरीज, एंड all the chapters are divided into 3 and 4 parts. First of all, the very first day you have to cover the concepts, and then you have to cover the easy questions, then you have to cover the moderate questions, and then you have to cover the difficult questions. And in RBI, you know, only the difficult questions are going to be asked, but I have assigned some days for easy questions and moderate questions in order to understand the application of that particular topic, ठीक है। नंबर सीरीज, फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, परसेंटेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, इस तरीके से चलता रहेगा। कॉन्सेप्ट्स, इजी क्वेश्चन, मॉडरेट क्वेश्चंस एंड देन डिफिकल्ट क्वेश्चंस, ठीक है। एंड शाम को उसके बाद करंट अफेयर्स पढ़ने के, क्वांट और या फिर रीजनिंग पढ़ने के बाद आप थोड़ा सा ब्रेक लेंगे 15-20 मिनट का, देन यू विल पिक अप करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स में व्हाट यू हैव टू डू, डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ प्लस फाइनेंस करंट अफेयर्स प्लस पीआईबी करंट अफेयर्स। डेली करंट अफेयर्स आपको डेली हाफ एन आवर पढ़ना है। यू हैव टू स्टडी डेली करंट अफेयर्स फॉर हाफ एन आवर, राइट। PIB for half an hour and finance current affairs for half an hour alternately, right? Like for example, I take classes of PIB on Monday. So on Monday you can read half an hour PIB, whatever I am teaching there. On Tuesday, Madhav sir takes finance current affairs, so you can study finance current affairs on Tuesday for half an hour. So this way your weekly and monthly PDFs shall be covered of all PIB and finance current affairs, and daily current affairs you have to study daily for half an hour, ठीक है। एंड यस, दिस इज द राइट टाइम टू स्टार्ट फॉर करंट अफेयर्स। अ लॉट ऑफ पीपल आर आस्किंग दिस कि व्हेन शुड वी स्टार्ट करंट अफेयर्स, सो दिस इज द राइट टाइम बिकॉज इट विल टेक अप्रोक्सीमेटली 1 मंथ टू मेक इट अ हैबिट। तो आपको आदत बनाने के लिए भी कम से कम 1 महीना लगेगा करंट अफेयर्स के लिए। सो आई वुड सजेस्ट यू टू स्टार्ट इट फ्रॉम टुडे इटसेल्फ, ठीक है। एंड PIB तो मैं ले ही रहा हूं एवरी मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे 5 PM, एंड फाइनेंस करंट अफेयर माधव सर ले रहे हैं every Tuesday, Thursday and Saturday 5 PM. So you don't have to go anywhere, you don't have to worry about the current affairs at all, and daily current is also being taken by पुष्पक सर, ठीक है। तो ये हो गया पहला महीना। उसके बाद हम दूसरे महीने में आएंगे, अगेन बिल्कुल उसी तरीके से चलेगा। मॉर्निंग में आपको ऑल्टरनेट डेज पे फाइनेंस पढ़ना है और मैनेजमेंट पढ़ना है। ये हो गया हमारा RBI सिलेबस, ये हो गया चैप्टर्स इन द कोर्स, एंड यू कैन सी appropriate time has been given for revision, has been given for the practice test, has been given for the breaks as well, ठीक है। ब्रेक्स भी आपको कंटिन्यूसली दिए हुए हैं, लाइक फॉर एग्जांपल डे 33 सुबह प्रैक्टिस टेस्ट लगाओ और उसके बाद पूरा दिन चिल करो। ब्रेक लेना बहुत जरूरी है, अगर ब्रेक नहीं लोगे तो बर्न आउट हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से मंथ 2 में फाइनेंस और मैनेजमेंट चलता रहेगा ऑल्टरनेट डेज पे, एंड इन द इवनिंग आपका क्या चलेगा, कौन चलेगा अभी दूसरे महीने में, और उसके बाद 1 महीने, उसके बाद जो 1 घंटा होगा वो करंट अफेयर्स चलता रहेगा, ठीक है। इसके बाद हम मंथ 3 पे आएंगे। अगेन वंस अगेन अभी भी हमारा फाइनेंस और मैनेजमेंट चल रहा है ऑल्टरनेटिवली। सो 3 महीने मैंने आपको दिए हैं फॉर फाइनेंस एंड मैनेजमेंट,
alternate days पे. So what you can also do, you can devote 1.5 months to finance and 1.5 months to management. If you are not comfortable in doing these two subjects simultaneously, so what you can also do, you can devote 1.5 months to finance and another the next 1.5 months to the management. इसी टाइम टेबल को आप थोड़ा सा चेंज कर सकते हो, ठीक है. सो ये चलता रहेगा. फिर फाइनेंस मैनेजमेंट, अप्रोप्रिएट ब्रेक और प्रैक्टिस टेस्ट आपको दिए हुए हैं, तो आपको कोई टेंशन वाले लेने वाली बात नहीं है. सिमिलरली इन द इवनिंग अभी भी आपका क्या चल रहा है, क्वांट रीजनिंग क्वांट चल रहा है, ठीक है, और 1 घंटा करंट अफेयर्स, तो वो तो चलता ही रहेगा, उसको आपको नहीं रोकना है, ठीक है. थर्ड मंथ के लास्ट तक आपका, एट द एंड ऑफ थर्ड मंथ यू विल बी डन विद फाइनेंस एंड मैनेजमेंट, ठीक है. दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ फाइनेंस, बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, एंड एथिक्स एट द वर्क प्लेस, इट द लास्ट टॉपिक ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है. नाउ अब हम आएंगे मंथ 4 पे. विल कम टू मंथ 4 नाउ, वेयर वी विल बी स्टार्टिंग इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज, ठीक है. Here we will be starting economic and social issues. Again, the timetable is divided into 2 slots, morning and the evening, right? So what we will be doing in the morning, on alternate days we will be covering economic and social issues and government schemes. See, there are a lot of government schemes that you have to cover. Now this, I am not suggesting you to start government schemes from today, because government schemes क्या होते हैं, बहुत सारे होते हैं और वो अपडेट होते रहते हैं continuously. So maybe after 2-3 months, maybe from the month of February or March, you can start government schemes, ताकि एग्जाम पास आ चुका हो, ठीक है. सो दिस टाइम टेबल इज इन अलाइनमेंट विद दैट पर्टिकुलर थिंग. सो अगेन, इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज, दिस इज द आरबीआई सिलेबस एंड दिस इज द चैप्टर इन द कोर्स. इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर योरसेल्फ, देन यू कैन कवर दीज चैप्टर्स फ्रॉम व्हिचएवर सोर्स यू आर कवरिंग. आई एम नॉट सेइंग कि आप मतलब यही चैप्टर्स इन द कोर्स फॉलो करो. व्हाटएवर सोर्स यू आर फॉलोइंग, व्हाटएवर बुक यू आर फॉलोइंग, व्हाटएवर नोट्स यू आर फॉलोइंग, यू कैन फॉलो दैट. बट ये जो है, जो हमारे एनरोल्ड स्टूडेंट्स हैं उनके लिए काफी बेनिफिशियल रहेगा, सो दैट दी गाइस, दोज गाइस कैन कवर इजीली, ठीक है. सो ये हो गया आरबीआई सिलेबस. इसी तरीके से ये चलता रहेगा मॉर्निंग में, और ऑल्टरनेट डेज पे आपको करनी है गवर्नमेंट स्कीम्स, ठीक है. गवर्नमेंट स्कीम्स यू गाइस हैव टू कवर मिनिस्ट्री वाइज. तो ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, 1-2 दिन आपको दिए मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के लिए, एंड आराम से इन द गिवन 2 days the schemes from the Ministry of Health and Family Welfare can be covered, ठीक है. Alternately इसी तरीके से हम चलते रहेंगे, economic and social issues and government schemes in the morning, ठीक है. In the evening what we are going to do, we are going to start reasoning. Reasoning start हो चुका है from the 4th month, ठीक है. और current affairs तो बिल्कुल वैसे ही चलता रहेगा जैसे चल रहा था, daily current plus PIB plus finance current affairs, ठीक है. Similarly for the month 5 we will be doing economic and social issues and government schemes alternately in the morning, right? RBI syllabus, chapter in the course, these are the ministries that you have to cover. ये मैंने as per the number of schemes available in a particular ministry, उस हिसाब से मैंने दे रखा है. Like for example, in this day you can cover these 2 ministries, while in this day you can cover only one ministry, that is Ministry of Minority Affairs, because the number of schemes are more, ठीक है. And evening again, अभी भी आपका क्या चल रहा है जी, रीजनिंग चल रहा है. इवनिंग में आपका रीजनिंग चल रहा है और करंट अफेयर्स चलता रहेगा. फिर हम आएंगे आखिरी मंथ पे, जो कि है मंथ 6. मंथ 6 तक के एंड तक आते आते आपका ईएसआई कंप्लीट हो जाएगा, और ये बहुत कॉम्प्रिहेंसिव है. अगर आप धीरे धीरे भी करोगे ना, आराम से कवर हो जाएगा, ठीक है. बाकी जब नोटिफिकेशन आएगा, सो वी विल बी कमिंग अप विद अ क्रैश कोर्स, तो वहां तो सारी चीजें कवर होंगी ही, ओके, राइट. सो ये गवर्नमेंट स्कीम्स और ईएसआई पूरा कंप्लीट हो जाएगा इन द मॉर्निंग स्लॉट इन द मंथ 6. एंड आपको फिर जैसे ही मंथ 6 आएगा, उसमें आपको दूसरे जो टॉपिक बेस्ड करंट अफेयर्स होते हैं उसके ऊपर भी फोकस करना है. जैसे एनुअल सर्वेज है, 15 फाइनेंस कमीशन, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे के लिए आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है. पूरे यूट्यूब पे सबसे क्लीन बजट जो कोई देता है तो वो मैं ही हूं. सो द डे द बजट इज रिलीज्ड, एट द सेम डे आई विल बी प्रोवाइडिंग यू द समरी ऑफ बजट, ठीक है. सेम गोज फॉर इकोनॉमिक सर्वे, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, एनएफएचएस, पीएलएफएस, एआईएसएचई, ये जितने भी एनुअल सर्वेस हैं जो कि रिलीज होते हैं हर साल, वो आपको कवर करने हैं, राइट. एंड इंडाइसेस एंड रिपोर्ट्स के बारे में अगर हम कहें, तो इंडाइसेस एंड रिपोर्ट्स आर बीइंग कवर्ड इन डेली करंट एंड पीआईबी एंड फाइनेंस करंट अफेयर्स, सो यू नीड नॉट वरी अबाउट इट, ठीक है. या सो दिस इज द टाइम टेबल गाइस, दिस इज द टाइम टेबल, and you can avail this timetable. You can download this timetable from the link given in the description of this particular video, and also I will circulate this timetable on my Telegram channel. If you want to join my Telegram channel, it is Manish Sir RBI SEBI NABARD.
Manish dash RBI SEBI NABARD is the Telegram channel. You can join it and you can have this PDF. बाकी आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा इस पर्टिकुलर एक्सेल शीट का. आई होप आपको समझ में आ गया है. एंड यस, कई लोग कंफ्यूज होते हैं, मंथ 1 पे क्लिक करते हैं और कहते हैं कि भाई ये तो अधूरा है. आपको ध्यान से यहाँ पे नीचे देखना है, टैब है मंथ 1 2 3 4 5 6. आई होप इट इज विजिबल. यस, इट इज विजिबल. मंथ 1 2 3 4 5 6 6 अलग अलग शीट्स इसके अंदर बनी हुई हैं. आपको सारी शीट्स को फॉलो करना है. ठीक है. Alright guys, that's all which I wanted to discuss. That's a gift from my side to you on this occasion of New Year. And yes, if you want to have a one-on-one mentorship with me, you can join our one-on-one mentorship course. And there you will get the live lectures from India's best faculties of regulatory bodies, the comprehensive PDFs, the current affairs, the one-on-one mentorship with me. Okay? And for that, if you want to avail this course at a good discount, you can use the coupon code MANISH Manish. Okay. Thank you very much. I'll see you in some of the other video. Goodbye. Take care and God bless.